Yeah, it was a great, wonderful session to understand about the body and the mind. I just want to check, is this Kumbhak therapy all about breathing, or is anything also related to any where even the food control or diet control also is going to happen? See, all of you people who are present here, you need to understand what is the treatment protocol at this point of time followed by any treatment methodology. For example, allopathy, Ayurveda, homeopathy, naturopathy, diet. Now, there are certain vital parameters of your body. So, for the first time, when you go to a doctor, what the doctor does makes you do certain diagnostic test and see where is all those vital parameters, and then try to adjust it by incorporating a drug, a medicine of any kind, or a supplement or vitamin. The second thing that is being done is surgery. Basically, if there is some kind of a prolapse, like disc prolapse or a disalignment, then the doctor does a surgery. If there is any kind of growth, the surgeon will take off that growth. But fundamentally, the treatment methodology is getting your vitals to normal. But when you go to a doctor for pain, there is no test for pain. So whatever is being given to you is basically not, or creating a curtain so that you can't feel the pain. So all your NSAIDs, painkillers, they are prostaglandin inhibitors. Basically, there is a growth factor of body which gets activated. Because there is a damage. Whenever there is a damage, there is a growth factor which gets activated. And all those prostaglandin inhibitors trying to inhibit that activation of prostaglandin or growth factor. But then when we say we try to do it because you are not comfortable, trying to make you comfortable is always not a good idea. Because prostaglandin inhibitors has caused a rapid increase in cancer in the world. So there is a consequence to everything that you do. From outside, बाहर से आप कुछ भी शरीर के साथ में करने की कोशिश करेंगे, शरीर उसका उल्टा रिस्पॉन्स देता है. इतना ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी जो है उससे इम्पैक्ट हो जाती है. तो ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली व्हाट इज ट्रीटमेंट? ट्राइंग टू टेल यू. नाउ देयर इज अ स्ट्रेंथ इन योर बॉडी विच कीप्स योर वाइटल्स नॉर्मल इन अ रेंज. आपके शरीर में एक शक्ति है जो कि आपके वाइटल्स को नॉर्मल रखती है. अभी तक तो था नॉर्मल, जब तक कि आप किसी बीमारी में नहीं आए तब तक नॉर्मल था. बी इट स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ. स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ भी जो है ना आपका, वो आपके शरीर का स्ट्रेंथ ही है. नाउ अनलेस अंटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज पेन, अनलेस अंटिल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज थेरेपी, क्या ठीक करती है आपको, तो सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको आपके शरीर की शक्ति ठीक करती है, स्ट्रेंथ ठीक करता है. डाइट से आप स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं करते, मेडिसिन से आप स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं करते. भोजन खा के आपको स्ट्रेंथ मिलता है क्या? आपको ऐसा लगता है, यू थिंक दैट यू गेट स्ट्रेंथ. नो, यू गेट अ लिटिल एनर्जी. उम्र के साथ में आप भोजन करते रहते हैं और वो कमजोर होते जाते हैं. आपको सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए. तो डाइट आपको शक्ति नहीं देता, मेडिसिन आपको स्ट्रेंथ नहीं देता. आपकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंटेनिंग द वाइटल्स ये मेडिसिन कभी भी नहीं देता, बल्कि उस स्ट्रेंथ को कम करता जाता है. दैट इज वाई मोर मेडिसिन मोर डिजीज. ये तो आप देख ही रहे हैं, यू नो दिस. तो व्हाट इज दैट विच कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ अ डिफिकल्टी और अ प्रॉब्लम और अ डिजीज? क्या है जो आपको इससे निकालेगा? आप इसे ऐसे कह सकते हैं वाइटल मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, या इसको ऐसे कह सकते हैं कुंभक. सो व्हाट इज कुंभक?
वाइटल मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, वाइटल पैरामीटर्स जो है मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो आपके वाइटल्स को, स्ट्रक्चर को, ब्लड प्रेशर को, शुगर को मेंटेन करके रख सके, भोजन पचा सके. नाउ if you are talking about strength, what is one thing in your body which gives you strength? इसको सोचना पड़ेगा. Food cannot give you strength, medicine cannot give you strength, तो what is that which gives you strength? तो आप कोई भी जोर का एफर्ट लगा के देखने की कोशिश कीजिए. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, व्हाट डू यू डू? अगर आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो, क्या करते हैं आप? तो आप जोर का धक्का देंगे किसी भारी चीज को. इफ यू वांट टू पुश अ हेवी थिंग, यू विल होल्ड योर ब्रेथ फॉर इट टू इंक्रीज द फंडामेंटल स्ट्रेंथ. पुशिंग स्ट्रेंथ, पुलिंग स्ट्रेंथ, जंपिंग स्ट्रेंथ, यू ऑलवेज होल्ड योर ब्रेथ. आप हमेशा सांस रोकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए. So what we are doing, is it a breathing exercise? No. What we are doing, is it pranayama? No. Is it yoga? No, not at all. क्योंकि योगा तो आपको मुक्ति देगा, मोक्ष देगा, समाधि देगा. हमें नहीं देना वो आपको. हमें आपकी बॉडी को वाइटल मेंटेनिंग स्ट्रेंथ देनी है, रिकवरी की स्ट्रेंथ देनी है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ देना है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ देना है, स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ देना है. देयर आर 84 फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स इन योर बॉडी. Now, when we try to do it, the fundamental thing is breath hold through which we increase the strength. But apart from it, और क्या होगा? You get into a posture and hold your breath. फिर वो और इफेक्टिव होगा for a particular part of your body. आप एक तरीके से पोजीशन में आके सांस रोके एक जगह पे फोकस करें, तो we can increase strength of a particular joint, an organ, a function in your body. किसी जॉइंट की अगर स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, किसी लिवर की, हार्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, या कोई कामकाज की मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए हमारे शरीर एक पोजीशन में आके अगर सांस रोक के एक जगह फोकस करके अगर ये कर सके, एक पर्टिकुलर होल्ड तक जा सके. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल. देखिए, आप ना इस तरीके से आपको ट्रेन नहीं किया गया. यू हैव बीन ट्रेन्ड इन सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. तो आप ये जब वीडियो शेयर करेंगे क्वेश्चन आंसर का, प्लीज वॉच इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू गेट इट, क्योंकि ये बहुत आसान है समझना. तो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, द मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज गॉटन वीक. यानी भोजन आपके दादा दादी जो खाते थे उसका 70% यूज कर लेते थे, आप 40% यूज कर पाते. नाउ अगर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो what can be done? Now, breath hold is strength generating mechanism of your body. कुंभक आपके शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ाने का मैकेनिज्म है, तरीका. Now, if you inhale for a certain count, say for example 10 count of inhalation, if you can hold it comfortably without any difficulty for a count of 40 to 50, तब वो जो भोजन आप खाते हैं ना, उसका 40% से 50, 60, 70% तक आप जा सकते हैं. तो ये फॉर्मूलेज भी हैं, देयर आर नंबर्स वी पुट इनटू इट, देयर आर कस्टमाइजेशन विल डू, विल डायग्नोज यू फॉर प्राण शक्ति डायग्नोसिस. आपकी कौन सी शक्ति कमजोर हो गई, कहां से इसकी शुरुआत हुई, एंड देन विल गिव यू अ स्पेसिफिक मेथड, कस्टमाइज्ड मेथड आल्सो. तो क्या इसमें डाइट भी इंक्लूड होगा? वी विल सजेस्ट यू. मगर हम तो कहते हैं हम आपका डाइजेशन इतना इंप्रूव कर देंगे, पत्थर भी खाओ तो भी पचाओ. नहीं, आपका डाइजेशन कमजोर है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ. इज दिस लाइफ? और यू शुड बिकम सो केपेबल, इतनी आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कुछ भी खाओ तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. सो वी फंडामेंटली आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. हमारी इच्छा वो है, गोल वो है. लेकिन वी विल गिव यू डाइट सजेशन. इट विल नॉट बी डाइट प्लान. कोई डाइट प्लान नहीं होगा कि ये खरीद के लाओ खाओ ना, हम नहीं देंगे. वी विल टेल यू व्हाट इज डाइट. डाइट है क्या, आपके शरीर की डाइट की समझ क्या है, हाउ योर बॉडी अंडरस्टैंड्स डाइट. सो विल गिव यू दैट. देयर विल बी सर्टन मूवमेंट, प्रेशर. आप एक जगह पे थोड़ा प्रेशर डाल के फिर कुंभक करेंगे, थोड़ा पॉस्चर के साथ में कुंभक करेंगे. तो कुंभक मेन है, इट इज नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज.
It is a strength generating formula where breath hold also is a part of it. सांस रोकना इसका एक प्राइमरी पार्ट है, कितना रोकना वो हम बताएंगे. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन इट, मगर प्राइमरी आपको ठीक कौन करेगा? कोई मेडिसिन ठीक नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है. लीव इन्फेक्शन, इन्फेक्शन छोड़ दो. 20% ऑफ टोटल डिजीज आर इन्फेक्शियस इन नेचर. इन्फेक्शन हटा. क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकते. देयर इज अ 100-year विंडो ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रूफ. 100 साल का प्रूफ है. सारी बीमारियां बढ़ रही हैं. तो मेडिसिन कैन नॉट क्योर यू, कैन नॉट गेट यू टू हेल्थ. ये पहली बात. योर स्ट्रेंथ कैन गेट यू टू. व्हाट इज हेल्थ? वाइटल मेंटेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी हेल्थ. और वो कैसे मेंटेन होता है? स्ट्रेंथ से. स्ट्रेंथ कैसे जनरेट होता है? कुंभक से. हम कुंभक करा रहे हैं, तो कुंभक इक्वल टू स्ट्रेंथ. ब्रेथ इन्वॉल्व्स इन इट, बॉडी इन्वॉल्व्स इन इट, माइंड इन्वॉल्व्स इन इट. ये सब भी इन्वॉल्वमेंट है उसका, बट फंडामेंटली हमारा गोल है आपकी बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना है.